J.J. Thomson model 1897 discovered electron. After the discovery of negatively charged electrons, it was realized that the electrons were the constituent particles of atom. Since atom is neutral, Thomson proposed that the atom might be regarded as a sphere of positive charge in which negatively charged electrons were embedded. The magnitude of positive charge in the sphere was equal to the total charge carried by the electrons. This model of atom is called plum pudding model. अब next चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल की तरफ. Rutherford suggested an atomic model on the basis of X-ray scattering experiments. According to this model, the entire positive charge in the atom is concentrated to a very small region called nucleus. The entire mass of atom is due to nucleus. This model is also called as planetary model. Next आपके पास Bohr atomic model. Hydrogenic atoms like H atom, He plus, Li plus 2, Be plus 3, B plus 4, Bc plus 5. The atoms or ions which have single electron in orbit are known as a hydrogenic atom, i.e. if there is only one electron available outside the nucleus, then the atom or ion is called hydrogen-like or hydrogenic or Rydberg-like atom. तो आप देखिए ना यहाँ पर H एटम है, द एटम और आयंस विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन एटम ये तो आप जानते हैं इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है. अब He प्लस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. अगर वो एक लूज कर देगा तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, वही कह रहा है इसके अंदर. लिथियम जैसे कि 3 होते हैं तो वो 2 लूज कर देगा तो एक रह जाएगा. ऐसे ही आप 100 ऑन देख सकते हैं आगे. सो if there is only one electron available outside the nucleus, then the atom or ion is called as a hydrogen-like or hydrogenic or Rydberg-like atom. Next, postulates. The electron revolves in a circular orbit around the nucleus. The dynamics of electron is governed by Newtonian mechanics. The centripetal force required for circular motion is provided by Coulombic attraction of nucleus on the electron. Centripetal force आपके पास mv square over r, ये किसकी तरह और बैलेंस होता है आपके पास Coulombic attraction of nucleus on the electron, which is 1/4 pi epsilon z e dot e by r square. Okay. Angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, i.e. h cut. So angular momentum, which you know very well, L is equal to r cross p on. So the magnitude of angular momentum is mvr sin 90. So sin 91. So angular momentum magnitude is mvr. So mvr is equal to nh by 2 pi. According to this postulate, that the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. N is integer 1, 2, 3 and is known as principal quantum number. Third postulate, electrons do not radiate energy in circular orbit, so the orbits are called as stationary orbits. While making transition from stationary orbit of higher energy to that of lower energy, it does radiate, emits energy. The electron may also go over from orbit of lower energy to that of higher energy by absorbing energy. Okay. सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो ये भी आपने क्लास 11-12 में देखा होगा. ठीक है, तो ये आपने डेरिवेशंस किया. आइए इनको जल्दी से कर लेते हैं. तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, कोलम्बिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो कोलम्बिक अट्रैक्शन आपके पास कितना है इसके अंदर? 1/4 पाई एप्सिलॉन z e डॉट e बाय r स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स mb स्क्वायर ओवर rn. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, सेकंड पोस्टुलेट जो आपके पास है. ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय mr स्क्वायर n. तो फर्स्ट इक्वेशन को आप अगर mr स्क्वायर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट mr स्क्वायर n 1/4 pi epsilon naught z e square over rn square is equals to mb square over rn cross mrn square. So which eventually gives us mz e square over 4 pi epsilon naught is equals to mv and rn का whole square over rn. Okay, so rn is equals to mv and rn का whole square 4 pi epsilon naught over mz e square. So radius of nth orbit is equals to n square by z h cut h square epsilon naught over pi m e square. Next आपके पास velocity of electron in nth orbit. Velocity of electron in nth orbit, again by second postulate we are starting mv and rn is equal to nh by 2 pi. Velocity vn is equal to nh by 2 pi mrn. अब rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो हमने ऊपर से निकाली थी अभी. ठीक, n square by z h square epsilon naught by pi m e square. So velocity of electron in nth orbit is z by n product e square by 2h epsilon naught. नाउ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने क्या निकाली थी? n स्क्वायर बाय z प्रोडक्ट h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर. अब देखिए h की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 6.62 × 10⁻34, इसका स्क्वायर कर देंगे आप. और एप्सिलॉन नॉट की आप जानती हैं 8.86 × 10⁻12 और पाई की भी आप जानते हैं 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31. इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19. ये सब कुछ करने पर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m e स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 0.529 angstrom n square by z. Okay, so for hydrogen atom z equals to 1, so 0.529 angstrom cross n square. Okay, z हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया ना. So for the first orbit n equals to 1, so r1 is equals to 0.529 angstrom is equals to a. Okay, which is nearly equals to 0.53 angstrom. For second orbit n equals to 2, so r2 is equals to 0.529 cross 2 square. Okay, तो z तो 1 है ना, तो हम n स्क्वायर कर रहे हैं, तो n equals to 2, तो 2 का स्क्वायर. For third orbit n equals to 3, r3 is equals to 0.529 cross 3 square
इज इक्वल टू 4.761 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए हीलियम प्लस आयन भी देख लिया हम, ठीक है। हीलियम प्लस आपके पास हाइड्रोजन लाइक एटम ही है तो Z2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस फर्क कितना ही है, तो 0.52 एंगस्ट्रॉम क्रॉस n स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब n स्क्वायर वैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। तो ये सब्स्टिट्यूट करके आप R1 R2 एंड R3 निकाल सकते हैं इजीली, ओके। तो आप देख सकते हैं आंसर, ओके। अब फॉर द Li+2 आयंस, Li+2 आयंस देखिए अब Z3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। Be+3 Z4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कार्बन+5 Z=6, ओके। तो n²/6 हो जाएगा इंटू 0.53। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ताकि आप पेपर में इसे इजीली यूज़ कर सकें। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल्स टू, अभी हमने निकाली थी आपके पास, पर यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम उसे जनरलाइज कर देंगे। सो Vn इज इक्वल्स टू Z/n क्रॉस E²/2h एप्सिलॉन नॉट। तो E²/2h एप्सिलॉन नॉट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E² 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर आपके पास 2 का 2 h आपके पास 6.6 × 10⁻34। यू वेरी वेल नो दिस। एंड एप्सिलॉन नॉट 8.86 × 10⁻12, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ओके। सो वेलोसिटी आपके पास आ गई 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड क्रॉस Z/n फॉर H एटम Z इज 1, ओके। तो H एटम Z इज 1 आपके पास 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड बाय n, ओके। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट आप वैसे ही करेंगे, देखिए V1 आप निकल जाएगी, फॉर द सेकंड ऑर्बिट V2 निकल जाएगा, थर्ड ऑर्बिट V3 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। फॉर हीलियम प्लस आइटम तो आपके पास Z = 2 हो जाएगा। इस बार आपके पास nth ऑर्बिट में वेलोसिटी आपके पास हीलियम एटम के लिए कितनी हो जाएगी, हीलियम प्लस के लिए 2.18 × 10⁻6 क्रॉस 2 बाय n, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ओके। फिर Li+3 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इस बार आपके पास Z3 हो जाएगा इजी। बेरिलियम+3 के लिए भी आप कर सकते हैं, Z = 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² n, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपके पास वेलोसिटी आ गई ना nth ऑर्बिट की, तो हाफ m v आपके पास वेलोसिटी कितनी थी nth ऑर्बिट की, आपके पास ZE²/2 n h एप्सिलॉन नॉट, ओके। So kinetic energy is equals to Z²/n² me4/8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन आपके पास अट्रैक्शन शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ZE.E/Rn, ठीक है। तो Rn आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो Rn आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे n²h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m ZE², ओके। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -Z²/n² me4/4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये आपके पास वहाँ पर by8 आ रहा था, यहाँ पर आपके पास by4 आ रहा है, तो आपके पास ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास Z²/n² me4/8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास माइनस में थी तो माइनस लगा रहा हूँ पहले से ही मैं, तो -Z²/n² me4/4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या थी, आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ट्वाइस थी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, Z²/n² me4/8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस का। तो यहाँ पर आप me4/8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमने एनर्जी को भी सिंप्लीफाइड कर लिया। एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², ओके। Z आपके पास 1 है, ठीक है। तो आप ये कर देंगे और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप निकाल सकते हैं। देखिए ये तो आप जानते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ऐसे सेकंड ऑर्बिट के लिए आप, ऐसे थर्ड ऑर्बिट के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये भी देख लीजिए एंड फॉर द आयनाइज्ड स्टेट n इक्वल्स टू इनफिनिट, n इक्वल्स टू इनफिनिट, ई एनर्जी एट इनफिनिट इज इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। यू वेरी वेल नो दिस। तो आइए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विद रेडियस इक्वल्स टू फर्स्ट बोर रेडियस हैज वेलोसिटी। तो फर्स्ट बोर रेडियस वाले इलेक्ट्रॉन की आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी तो आप जानते हैं ना, ऊपर हमने निकाली थी आपके पास, ये रही है आपके पास फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1। तो वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखिए 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड क्रॉस Z/n था, Z आपके पास 1 पुट किया था हमने, और फॉर n = 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट, सो 2.1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ गई है हाइड्रोजन एटम में फॉर द इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखिए जो आंसर है हमारे पास वो सी की फॉर्म में पूछ रहा है। अब सी की फॉर्म में पूछ रहा है तो देखिए आपके पास इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास सी आपके पास प्रोडक्ट में शो कर रहा है, तो मैं V1 को अगर सी से डिवाइड कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 1/37 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही बैठता है।